to the first video on Tughlaq by Girish Karnad. Here we shall discuss the plot of the play. We have 4 videos in which we will discuss the plot, and this is part A or the first video. रचयिता गिरीश कर्नाड द्वारा रचित नाटक तुगलक के इस पहले वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस नाटक के प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 4 वीडियोस में किया गया है। ये उसी क्रम में पहला वीडियो है। तुगलक was written in 1964. It was Girish Karnad's second play. The play was originally written in Kannada and then translated into English by Karnad himself. नाटक तुगलक 1964 में लिखा गया था और गिरीश कर्नाड ने जो नाटक लिखे हैं उनमें ये दूसरे नंबर का नाटक था। अब मूल रूप से इस नाटक को कन्नड़ भाषा में लिखा गया था और बाद में इसको गिरीश कर्नाड ने स्वयं ही अंग्रेजी में अनुवाद किया। It is based on the details about the life of Sultan Muhammad bin Tughlaq, who had ruled in India in the 14th century. This play is written about the life and the rule, the time, the period of Sultan Muhammad bin Tughlaq, who ruled in the 14th century. ये नाटक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के जीवन, उनके शासनकाल, उनके समय के ऊपर लिखा गया है जिन्होंने 14th century में शासन किया था। In the old days, history and literature were not well recorded as there were neither facilities nor technology. Now, because the time that we are talking about is the 14th century, and in those days there was neither technology nor any other means of putting things on record. That is the reason why the history or the literature of that time has not been recorded very well. इस नाटक में हम 14th century के बारे में जिक्र करेंगे। उस समय पर किसी भी चीज के रिकॉर्ड को रखने के लिए ना टेक्नोलॉजी विकसित थी, ना ही कोई और साधन थे जिनसे उस समय के रिकॉर्ड्स को संजो कर रखा जा सके। इसलिए ना उस समय का इतिहास हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ पाता है और न ही उस समय का साहित्य। So there is a lot of controversy among historians about the character of Tughlaq. This is the reason why the character or the personality of Sultan Muhammad bin Tughlaq is in a state of controversy. Because we do not know what to believe, what not to. Because there is absolutely no confirmation about the information that we gather from different sources. क्योंकि उस समय पर रिकॉर्ड पर चीजों को लाना, इस चीज के लिए कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी, कोई साधन संसाधन नहीं थे। यही कारण है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के पात्र के बारे में या उनके पर्सनालिटी के बारे में या वो किस तरह के व्यक्ति थे, कैसा उनका शासनकाल था, इसके बारे में कई कंट्रोवर्सीज हैं, कई विरोधाभास हैं और उन सब को हम इसलिए चैलेंज नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे पास सही को सही मानने का या सही को गलत मानने का, दोनों का ही कोई प्रॉपर
डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्टिव नहीं है जिसके माध्यम से हम ये कह सकें कि ये बात सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। तो इसलिए हम इसको, जो हमारे सामने तथ्य आ रहे हैं, हम उनको ही मान लेते हैं और उनके आधार पर ही हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं या हमें जो उपलब्ध साहित्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। Girish Karnad has appropriately presented this character as a man of opposites. Now, for this reason, Girish Karnad has presented the Sultan as a man of opposites, a man having diverse qualities. क्योंकि कुछ कंफर्मेशन नहीं है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और वो उनको साबित कैसे, प्रमाणित कैसे करें। तो इसलिए गिरीश कर्नाड को जितनी सूचना प्राप्त थी, उपलब्ध थी, उतनी सूचना के आधार पर उन्होंने सुल्तान के पात्र को जो गढ़ा है, वो पात्र उन्होंने अ मैन ऑफ ऑपोजिट्स, विरोधाभासी गुणों वाले व्यक्ति के रूप में उस पात्र को गढ़ा है। क्योंकि जहां से जो फैक्ट्स उनके सामने आए, उन्होंने उनको ही अपने इस नाटक में समावेशित कर लिया है। The central theme of the play is the complexity of the character of Sultan Tughlaq, who has both the elements of good as well as evil. The central theme or the basic content of this play is the complexity of the character of Sultan Tughlaq. Now, the character we have already seen that it is known as a character having opposites put together. So, that is why there is complexity. And we have to understand that we will have both the diverse things at the same time. हम पहले ही देख चुके हैं कि सुल्तान के पात्र को या सुल्तान के व्यक्तित्व को ये माना गया है कि उसमें विरोधाभासी तथ्य समावेशित हैं। ऐसी स्थिति में हम उनके पर्सनालिटी को या उनके बारे में जो भी हमें तथ्य मालूम है, उन सबको एक साथ लेकर के चलेंगे और दोनों को पैरेलल साथ लेके चलते हुए उनकी पर्सनालिटी को समझेंगे। ऑन वन हैंड ही इज अ विजनरी, ऑन द अदर ही इज अ मैन ऑफ एक्शन। नाउ हियर वी सी दैट द सुल्तान इज अ विजनरी। The Sultan has big dreams. The Sultan has big ideas. He has a big scheme in mind. He has a mental vision of what things should be like. And on the other hand, he is a man of action. A person who always does things. He does not think about things. यहाँ पर हम सुल्तान के पात्र को देखते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि एक तरफ तो वो एक विजनरी हैं, वो एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति हैं जिनके मन में एक विचार है या उनके मन में एक चित्र है और उसके आधार पर वो समाज की कल्पना करते हैं, राज्य की कल्पना करते हैं, मनुष्य के जीवन की कल्पना करते हैं। दूसरी तरफ उनके चरित्र में ये भी चीज देखने को मिलती है कि वो एक कर्मठ व्यक्ति हैं, मैन ऑफ एक्शन हैं, कर्मयोगी हैं। द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो एंडोर्स द डुअलिटी इन तुगलक्स पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, हिज क्लोज एसोसिएट्स बरानी and scholarly historian Najib, who are practical politicians like him. Now, the characters or the people who are close to him, they also endorse, they also support the idea of the Sultan possessing a dual personality, a paradoxical or a controversial personality. This is what these two characters they project or they endorse through their different presence in the play. These two characters are Barani and Najib. यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दो पात्र बरानी और नजीब ये भी इस चीज की पुष्टि करते हैं कि सुल्तान के व्यक्तित्व में विरोधाभासी गुण थे और वो विरोधाभासी गुणों को साथ लेकर के ही
खुद भी आगे चले हैं जीवन में, और यहाँ पर नाटक की कहानी भी इन दोनों आयामों को साथ लेकर के आगे बढ़ती है। तुगलक's personality is very complex. This is evident from the beginning of the play. He can be considered as a learned and an intelligent man. He has abilities to learn, the curiosity to know, and he is an expert in playing chess. When we see the personality of our hero, Muhammad bin Tughlaq, we find that he has been considered as a learned and intelligent man, a person who has the potential to learn and who has the inclination to learn, and at the same time he has a very great attraction for playing chess. सुल्तान के व्यक्तित्व को हम देखते हैं तो उनके व्यक्तित्व में ये चीज उभर के आती है कि वो इंटेलिजेंट आदमी है, विवेकशील आदमी है, कुशाग्र बुद्धि वाले आदमी हैं, और उसके साथ ही साथ उनके अंदर क्यूरियोसिटी का एलिमेंट बहुत है, जिज्ञासा बहुत है। जो जिज्ञासु होगा वही कुछ सीखने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पर सुल्तान को एक जिज्ञासु व्यक्तित्व में देखने को मिलता है। उसके साथ ही साथ वो चेस खेलने के बड़े शौकीन हैं। Along with this, he has the knowledge of Quran more than any sheikh of his time. He is also a good reader who has read Greek and Arabic literature. Now, the character of Sultan, since it is a multi-dimensional character, that is why here we have been given the fact that the Sultan has the knowledge of Quran more than any other sheikh of his time. सुल्तान के पात्र में जो गुण डाले गए हैं उनमें एक गुण ये भी है कि सुल्तान को कुरान शरीफ का इतना ज्ञान है, इतनी जानकारी है जितनी कि उस समय के किसी शेख के अंदर भी नहीं हुआ करती थी। He is also a good reader who has read Greek and Arabic literature. और वो इतना पढ़ने के शौकीन हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ग्रीक और अरेबिक लिटरेचर को पढ़ा है। तुगलक thought of his life as a garden of roses where thorns also give delight. Now, the way Muhammad bin Tughlaq has interpreted his own life is that it is a garden of roses. Now, a rose has thorns in it. You can't imagine of a rose without thorns. So he says, my life is like a garden of roses where there are flowers, where there is fragrance, where there is beauty. At the same time, I have thorns also in my life. And these thorns also, they give me sufficient delight. They prick me. At the same time, they delight me. मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन के बारे में अपने जीवन को परिभाषित इस तरह से किया है कि मेरा जीवन एक गुलाबों का बागीचा है जिसमें गुलाब है। अब गुलाब है तो सौंदर्य भी है, खुशबू भी है, और हर तरह की वो सुंदरता जो गुलाब के साथ हम एसोसिएट कर सकते हैं वो सब हमें देखने को मिलती है उनके जीवन में। उसके साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि जिस तरह से गुलाब की कल्पना कांटे के बिना नहीं की जा सकती, कांटा गुलाब का अभिन्न अंग है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर है थॉर्न। इसी तरह से मेरा जीवन भी कांटों के से युक्त है और वो कांटे भी मुझे प्रसन्नता देते हैं। मैं केवल
गुलाब और उसकी खूबसूरती की बात नहीं करता हूं, मैं कांटों में भी खूबसूरती होने की बात करता हूं. He was very imaginative. His imagination expresses his understanding of literature. This is one of the dimensions of his personality which has drawn the attention of writers and playwrights to consider his personality as a theme for literary creation. Sultan was very imaginative. He could imagine things. He could understand things. He could stretch his mind to those borderlines which were beyond ordinary understanding. सुल्तान के अंदर कल्पनाशीलता बहुत अच्छी थी. यही कारण है कि कोई भी बात हो वो उसकी अच्छी कल्पना कर पाते थे, उसको अच्छे तरीके से विस्तार में ला करके देख पाते थे. और जब वो विस्तृत दृष्टिकोण से किसी चीज को देखते थे तो हर चीज का रूप बदल जाता था और उसकी जो वैल्यू होती थी वो भी बदल जाती थी. This is one of the dimensions of his personality which has drawn the attention of writers and playwrights to consider his personality as a theme for literary creation. This is the reason why writers like to write about Muhammad bin Tughlaq as the hero of their play or story or whatever form they give to their writings. Because the personality of the Sultan has many dimensions. क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का व्यक्तित्व बहुआयामी है, इसलिए लेखकों के लिए, नाटककारों के लिए उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक साधन है, बहुत आकर्षक विषय है, जिसके ऊपर लेखक या नाटककार कुछ भी लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें रोचकता है और उसमें लिखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. Let us see the explanatory notes to understand this part of the video. आइए अब कुछ शब्द और वाक्यांश देखते हैं जो इस वीडियो को समझने में सहायक हैं. Play, a piece of writing performed by actors in the theater or on television or radio. रंगमंच, टीवी या रेडियो पर प्रस्तुत नाटक. कन्नड़, a Dravidian language related to Telugu and using a similar script spoken mainly in Karnataka in southwestern India. कन्नड़ एक द्रविड़ भाषा है जो कर्नाटक में बोली जाती है. ट्रांसलेट, टू चेंज समथिंग रिटन और स्पोकन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. एक भाषा से दूसरी भाषा में लिखित या मौखिक अभिव्यक्ति का अनुवाद करना. टेक्नोलॉजी, द साइंटिफिक नॉलेज and or equipment that is needed for a particular industry etc. विशिष्ट उद्योग आदि के लिए अपेक्षित वैज्ञानिक जानकारी या उपकरण. प्रौद्योगिकी, शिल्प विज्ञान. कंट्रोवर्सी, public discussion and disagreement about something. किसी विषय पर सार्वजनिक चर्चा और विवाद. Here we have seen the personality of Muhammad bin Tughlaq is controversial. यहां हम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी के रूप में पाते हैं, जिसमें विविधता है और विवाद भी है. तो इस विवादास्पद स्थिति के कारण उनकी पर्सनालिटी को कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी माना गया है. हिस्टोरियन, अ पर्सन हु स्टडीज और हु इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री.
इतिहासकार, इतिहासविद या इतिहासज्ञ. Appropriate or right for a particular situation. Suitable, person, use, etc. किसी परिस्थिति, व्यक्ति या उपयोग आदि के लिए उपयुक्त या उचित. Complexity, the state of being complex and difficult to understand. जटिलता और दुर्बोधता जो समझने में सरल न हो. Visionary, having great plans for the future. भविष्य के लिए बड़ी योजनाएं बनाने वाला, भविष्यदर्शी. सुल्तान तुगलक को एक विजनरी के रूप में माना गया है. A man of action, a man whose life is characterized by physical activity or deeds rather than by words or intellectual matters. कार्रवाई करने में विश्वास रखने वाला आदमी, कर्मवीर. The Sultan has been seen as a man of action because he believes in doing things, not only thinking about them but he puts them into action. यहां पर सुल्तान को एक कर्म वीर के रूप में, कर्म योगी के रूप में दर्शाया गया है, जो केवल चिंतन नहीं करते हैं, वो उस काम को क्रियान्वित भी करते हैं और उनकी इस क्रियान्विति के कारण ही उन्हें मैन ऑफ एक्शन माना गया है. Endorse, to say publicly that you give official support or agreement to a plan, statement, decision, etc. किसी योजना की घोषणा, निर्णय आदि का सार्वजनिक तौर पर या अधिकृत रूप से समर्थन करना. Duality, an instance of opposition or contrast between two concepts or two aspects of something. A dualism, द्विआयामी, जब किसी चीज के दो पक्ष होते हैं और दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों में ऑप्शन नहीं होता बल्कि दोनों साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, उसको हम डुअलिटी कहते हैं. एसोसिएशन, a person that you meet and get to know through your work. व्यापार आदि कार्य में संगी, सहचर. Complex, made up of several connected parts and often difficult to understand. Complicated, अनेक परस्पर संबद्ध अंशों से निर्मित और प्राय दुर्बोध, पेचीदा या जटिल. Evident, clear to the eye or mind. Obvious, दिखने में या सोच में स्पष्ट, सुस्पष्ट, प्रकट. Learned, having a lot of knowledge from studying, for people who have a lot of knowledge. ज्ञानी, विद्वान, पंडित, विद्वतापूर्ण, पांडित्यपूर्ण. Intelligent, having or showing the ability to understand, learn and think. और clever, समझने
सीखने और सोचने की क्षमता से संपन्न, बुद्धिमान या चतुर। सुल्तान तुगलक has been considered intelligent because he has the ability to understand things and use them at the right time. सुल्तान को इंटेलिजेंट माना गया है क्योंकि उनके अंदर सोचने की क्षमता भी है, बुद्धिमत्ता भी है, चतुराई भी है। क्यूरियोसिटी, a desire to know or learn. जिज्ञासा, कौतूहल अथवा उत्सुकता। Chess, a game for two people that is played on a board with 64 black and white squares, a chessboard. Each player has 16 pieces which can be moved according to fixed rules. शतरंज का खेल, यह खेल दो व्यक्तियों के बीच 64 वर्गाकार काले व सफेद खानों वाले बोर्ड पर खेला जाता है। प्रत्येक खिलाड़ी की 16 मोहरें होती हैं जिन्हें निश्चित नियमों के अनुसार चलाया जाता है। कुरान, the Islamic sacred book believed to be the word of God as dictated to Muhammad by the Archangel Gabriel and written down in Arabic. इस्लाम की पवित्र पुस्तक या ग्रंथ। शेख, an Arab ruler. शेख अरब शासक को बोलते हैं। ग्रीक, द एंशियंट और मॉडर्न लैंग्वेज ऑफ ग्रीस, यूनानी भाषा। अरेबिक, द लैंग्वेज ऑफ अरब पीपल, अरबी भाषा। लिटरेचर, राइटिंग that is considered to be a work of art. Literature includes novels, plays and poetry. कलात्मक माना जाने वाला लेखन जैसे उपन्यास, नाटक, कविता, साहित्य आदि। सुल्तान तुगलक ग्रीक और अरेबिक लिटरेचर के जानकार थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण वो बहुत लिटरेचर पढ़ते थे जिसमें स्पेशली ग्रीक और अरेबिक लिटरेचर का जिक्र आता है। वी हैव सीन द पर्सनैलिटी ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक एज अ पर्सन हु हैज अ पेंचेंट फॉर एन अट्रैक्शन फॉर Greek and Arabic literature. Delight, great pleasure, joy or happiness which makes the person as well as the surroundings happy through the happiness that he reflects. डिलाइट का अर्थ है प्रसन्नता या आनंद। प्रसन्नता की ऐसी अनुभूति जो एक प्रसन्न व्यक्ति से पूरे वातावरण को प्रफुल्लित कर देती है। इमेजिनेटिव, हैविंग और शोइंग इमेजिनेशन। Here we have seen that the Sultan has been projected, has been represented as a person who has an imaginative mind, whose imagination is quite expanded.
कल्पना से उत्पन्न अथवा कल्पनाशील। यहां सुल्तान के व्यक्तित्व को कल्पनाशील दर्शाया गया है। जो व्यक्ति किसी भी चीज को देख करके जितनी वो प्रत्यक्ष रूप में सामने है, उसके अलावा उसको कितना कल्पना के माध्यम से विस्तृत किया जा सकता है और उसके बारे में कितना अधिक सोचा या समझा जा सकता है, वो कल्पना एक गुण है और ये गुण सुल्तान के अंदर बताया गया है। When the plot of the play has been constructed, these elements which we have discussed in this video about the personality of Sultan Muhammad bin Tughlaq have been taken into consideration. हम जब नाटक के प्लॉट की चर्चा कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व को जब एक मुख्य पात्र के रूप में लिया गया है तो वहां ये सारे के सारे तथ्य हमारे नाटक के लिए बेहद आवश्यक सूचना प्रदान करते हैं। The plot construction has some more elements which we will see in the following videos. Kindly see the next video. अभी इसमें प्लॉट कंस्ट्रक्शन में और भी कुछ एलिमेंट्स बाकी हैं जो हम आगामी वीडियोस में चर्चा करेंगे, इसलिए आप आगे की वीडियोस भी अवश्य देखें। थैंक यू, धन्यवाद।